in risk adjusted returns, we have seen various standardized performance system where we have seen what Sharpe ratio, Trainer ratio, Jensen alpha, information ratio, Sortino ratio in last lecture. Now, today we're going to see that FAMA measure. What FAMA measure? That is what various standardized performance system, risk adjusted returns का last अभी फिलहाल अपने को देखना है FAMA measure. Okay, so let's see that what is in this FAMA measure. Now FAMA measure, what बेटा ध्यान से सुनना. FAMA measure, that is Eugene Fama, full name, right? So FAMA measure compares what? Compares the performance of the fund. It compares what? FAMA measure compares the performance of the fund with required return. भाई आपका फंड कितना परफॉर्म कर रहा है, आपने क्या रिक्वायर्ड रिटर्न सोचा था, ठीक है, विथ रिक्वायर्ड रिटर्न, कंसिडरिंग व्हाट टोटल रिस्क, कंसिडरिंग टोटल रिस्क फेस बाय द फंड. एंड टोटल रिस्क यू ऑल नो दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया. टोटल रिस्क आ गया मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन है, याद रखने का. सो फार्मा मेजर कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड विथ रिक्वायर्ड रिटर्न. राइट है क्या बेटा, परफॉर्मेंस ऑफ द फंड विथ व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न. ठीक है, अभी समझो आपने रिक्वायर्ड रिटर्न क्या सोचा है कि 18%, कितना परसेंट, 18%, और आपका जो फंड परफॉर्म करके आपको एक्चुअल कितना दे रहा है, 21%. 21% हुआ कि नहीं, तो दैट इज व्हाट एक्सेसिव, मतलब एक्सेस हुआ ना, कितना एक्सेस हुआ, 18 एंड 21, 3%, बराबर है कि नहीं. तो इट मींस व्हाट, अभी आपको इधर देखो एक पॉइंट आगे दिया है कि फार्मा मॉडल आल्सो मेजर्स the excessive returns, excessive, sada, excessive returns over the required returns. Excessive return over the required return. Got it? Clear? So FAMA model also measures the excessive returns. Excess, कितना return excess हुआ? कितना हुआ? 21 minus 18, 3, right? So excessive returns over the required returns. Simple point. So याद रखना, Eugene Fama measure compares the performance of the fund. Compares what? Performance of the fund with required return. Performance of the fund with required return considering total risk faced by the fund. ये भी mind में रहना चाहिए. Considering total risk faced by the fund. So FAMA model also measure excessive returns. FAMA measure also क्या? Also measures excessive returns over the required returns. Right? FAMA model also measure what beta? The excessive returns over the required returns. Okay? And simple funda, the difference between the actual returns and required returns. अब जो difference अभी बताया ना, example 21, ये 21 आपका एक्चुअल हो गया, रिक्वायर्ड हो गया 18, ठीक है, तो कितना हो गया 3, तो 3%, और ये जो 3% होता है ना बेटा, दैट इज नोन एज नेट सिलेक्टिविटी. नेट सिलेक्टिविटी, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर, याद रखने का, भूलने का ना, समझा, ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न्स, व्हाट बेटा, द डिफरेंस बिटवीन actual returns and required returns of the fund is known as what? Net selectivity. Means actual returns and required returns के बीच का जो difference है, that is what known as net selectivity. It's very simple. Okay, ये याद रखना आप लोग, ये याद रखना भाई, याद रखने की चीज और कुछ नहीं है. मतलब ये जो 3% आया ना, that is what net selectivity. That is what net selectivity. तो याद रखना, the difference between the actual returns and required returns of the fund is known as net selectivity. Okay, तो starting के 3 points जो भी है सब मेन है, याद रखना है सबको, कि फार्मा मेजर कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड विथ रिक्वायर्ड रिटर्न कंसिडरिंग टोटल रिस्क फेस बाय द फंड. टोटल रिस्क म्हणजे काय? टोटल रिस्क मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखना, ठीक है, गॉट इट, क्लियर. And FAMA model also measures the excessive returns over the required return.
ये दिख रहा है ना, एक्सेसिव रिटर्न्स ओवर द रिक्वायर्ड रिटर्न्स, सिंपल, ठीक है। देन व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन, क्या बेटा, the difference between actual return, what, the difference between actual returns and required return, याद रखना, ये जो difference दिख रहा है आपको इधर, you can see here, that is 21 and 18. So this is 20, this 21 is the actual return and this 18 is what, required rate of return, and the difference between these two is known as net selectivity. ये word याद रखने का, this net selectivity, समझा क्या, net selectivity. So the difference between the actual return, and required return of the fund is known as net selectivity. बच्चा लोग, इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बनेगा, देखो आ जाओ। तो फॉर्मूला, net selectivity of the fund, what is the formula? What is the formula of net selectivity of the fund? Simple, अरे बाबा सिंपल फॉर्मूला है रे, एकदम सिंपल। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल मीन रिटर्न बाय द फंड, एक्चुअल मीन रिटर्न बाय द फंड माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द फंड। सिंपल है कि नहीं? एकदम है ना, नॉर्मल। अभी बताया ना, नेट सिलेक्टिविटी ऑफ द फंड का फॉर्मूला क्या हो गया, जो भी एक्चुअल रिटर्न होगा और रिक्वायर्ड रिटर्न, डिफरेंस ले लो, दैट डिफरेंस इज व्हाट नेट सिलेक्टिविटी यार, और क्या है? इज देयर एनीथिंग? बराबर, चल। So net selectivity of the fund is what? What is the formula? Actual mean return by the fund. क्या बेटा? But बच्चा लोग, actual mean return by the fund minus required return by fund. Okay? Actual mean return by the fund minus required return. वो जो difference आएगा, that will be what? Your net selectivity. That you all have to remember it. ये दिमाग में रखने का। उसके बाद क्या बोलता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ, देखो अभी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो कैसे निकालेगा? हाँ, कैसे निकालेगा? कैसे, हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इफ नॉट गिवन? सो फॉर दैट, रिस्क फ्री रेट फॉर्मूला देखो, रिस्क फ्री रेट आरएफ प्लस, रिस्क फ्री रेट को शॉर्टकट में सिंबॉलिकली बोलते हैं हम लोग आरएफ प्लस एन। एन मतलब क्या? ये देखो, ये एन है ना, ये दिखने में छोटा है लेकिन इधर इसका कैलकुलेशन ऐसा करना पड़ेगा रे बाबा, वेयर एन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है फंड का, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। वो फंड में कितना टोटल रिस्क है और मार्केट का टोटल रिस्क क्या है, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, सिंपल, ठीक है। सो ये एन दिखने में छोटा लगता है ना, लेकिन चार्ट नहीं है रे बाबा, वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है। इधर एन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, सिंपल, ओके। इधर रखने का, इधर माइंड में, भूलने का नहीं, ठीक है। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट, उसके बाद सी, ये हो गया एन इंटू, इंटू क्या करने का, इंटू मार्केट रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स। What बेटा? मार्केट रिटर्न्स मींस आरएम, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स आरएम हो गया, माइनस आरएफ, बराबर है, माइनस आरएफ। ये फॉर्मूला थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं, सिमिलर बीटा वाला, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो देखो, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या बेटा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हाँ वही CAG, बराबर है, करेक्ट है, मालूम पड़ा। तो रिस्क फ्री रेट प्लस एन इंटू मार्केट रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स, क्लियर, मालूम पड़ गया, पक्का, लॉक कर दो। हाँ, तो CAPM से रिलेटेड थोड़ा दिख रहा है ना आपको, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से रिलेटेड फॉर्मूला दिख रहा है, बस उधर क्या होता है, बीटा होता है बस, ठीक है। हाँ चलो, तो वेयर एन इज इक्वल टू देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, याद रखना। हाँ, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो क्या बोल रहे हैं इधर, अब पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, व्हाट, a positive value indicates that fund earned returns higher than expected। भाई अगर पॉजिटिव वैल्यू आया ना, पॉजिटिव वैल्यू,
that indicates that fund earned returns higher than the expected returns. बराबर है. अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या, फंड ने अच्छा कमाया, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था. एक्सपेक्ट कितना एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिल गया. दैट इज व्हाट पॉजिटिव, दैट इज व्हाट पॉजिटिव वैल्यू. सो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट द फंड अर्न returns higher than the expected returns. Remember it, right? And negative value, oh my gosh, negative value indicate the fund earned return less than the expected. Simple, nothing is there. Got it? So positive value is best, negative value is worst. यार क्या करेगा, अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम मिल रहा है तो थोड़ा तकलीफ होएगा नहीं रे बाबा, होएगा ना. मार्केट है, समझा कि नहीं. मार्केट में भाई कोई भरोसा नहीं होता, बट स्टडी करने का, स्टडी करके काम करेगा तो सब अच्छा होगा. पेशेंस, पेशेंस रखो, पेशेंस. ठीक है. सो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स द what positive value indicates that the fund earned returns higher than expected, and negative value indicates that fund earned return less than expected. याद रखना, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं. ये आपके दिमाग में पूरा फिक्स होना चाहिए. ठीक है. जिसमें एक बार फटाफट रिवीजन, फटाफट फास्ट रिवीजन. क्या सबसे पहला क्या बेटा, कि जो फार्मा मेजर है वो कंपेयर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द फंड विथ रिक्वायर्ड रिटर्न कंसिडरिंग टोटल रिस्क फेस्ड बाय द फंड. ओके. फार्मा मॉडल आल्सो मेजर द एक्सेसिव रिटर्न्स, excessive returns over the required returns. Okay. Or difference between actual return and required returns. So difference है between actual and required returns of the fund is known as net selectivity. याद रखना, ये net selectivity सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए. The difference between actual returns and required return of the fund is known as net selectivity. Clear है? क्या बेटा? The difference between actual returns and required returns of the fund is known as net selectivity. It's a net selectivity. तो net selectivity याद रखना, actual returns and required returns का जो difference होगा वो net selectivity हो जाएगा. Right है? Then formula. फॉर्मूले में देख लिया आपने, नेट सिलेक्टिविटी ऑफ द फंड, दैट इज एक्चुअल मीन रिटर्न ऑफ एक्चुअल मीन रिटर्न बाय फंड माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न बाय फंड. अब रिक्वायर्ड रिटर्न अगर आपको निकालना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो कैसे निकालना है, रिस्क फ्री रेट दैट इज आरएफ प्लस एन इनटू मार्केट रिटर्न दैट इज आरएम माइनस आरएफ. माइनस आरएफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न यार. अरे रिस्क फ्री रिटर्न है भाई ये, और कुछ नहीं है. आए समझा, राइट. अब इधर n जो है, n कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट n. सो फॉर कैलकुलेटिंग n, व्हाट इज द फॉर्मूला, n is equal to standard deviation of the fund divided by standard deviation of the market. What, how to calculate n? N is equal to standard deviation of the fund upon standard deviation of the market. Remember it, and always remember this, positive value indicates the fund earned higher returns than the expected. Positive value आया, it means fund earned returns higher than the expected. Whereas negative value, अगर negative value आ गया तो that indicates what, the fund earned returns less than expected, मतलब less than expected returns. ठीक है. तो ये सबके माइंड में अच्छे से रहना चाहिए. Got it? Clear? अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं. चलो तो फार्मा मेजर के ऊपर हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं. ठीक है. तो एग्जांपल देखते हैं. देखो, अप्लाइंग फार्मा मेजर. और बेटा आपको अप्लाई क्या करना है, फार्मा मेजर. अप्लाइंग फार्मा मेजर, कैलकुलेट नेट सिलेक्टिविटी. क्या कैलकुलेट करना है अपने को, नेट सिलेक्टिविटी फॉर फंड्स एक्स एंड वाई. ठीक है. क्या बेटा, अप्लाइंग फार्मा मेजर, कैलकुलेट व्हाट, नेट सिलेक्टिविटी फॉर फंड एक्स एंड वाई. ठीक है, मालूम पड़ा. assume that standard deviation of the market is 9%. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मार्केट का, 9% है. और रिस्क फ्री रेट कितना है बेटा, 8% है. याद रखो. क्या बोल रहा है,
देखो नेट सिलेक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है फंड एक्स और फंड वाई का. एज्यूम दैट स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द मार्केट इज व्हाट, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द मार्केट 9% है और रिस्क फ्री रेट इज व्हाट 8%. ओके, स्टैंडर्ड डिविजन मार्केट का तो 9% है, लेकिन अब फंड का स्टैंडर्ड डिविजन कितना है? स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ फंड एक्स एंड वाई आर 10% एंड 6% रिस्पेक्टिवली. ओके, फंड का रिस्क कितना है? फंड का टोटल रिस्क दिया है, मार्केट का भी टोटल रिस्क दिया, स्टैंडर्ड डिविजन. एज्यूम मार्केट रिटर्न, आपको क्या बोल रहा है? आपको एज्यूम करना है कि मार्केट रिटर्न आपका कितना है? 17%. ओके, एंड एक्चुअल मीन रिटर्न ऑफ एक्स, और जो एक्चुअल रिटर्न है, एक्चुअल मीन रिटर्न ऑफ एक्स कितना है? 21% है एंड वाई का 15% है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है व्हाट नेट सिलेक्टिविटी, व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट, मतलब व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट नेट सिलेक्टिविटी फॉर फंड एक्स एंड वाई. ठीक है, फॉर फंड व्हाट बेटा? एक्स एंड वाई. क्लियर? तो ये क्वेश्चन है. चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट. ठीक है, चलो सो लेट्स गेट रेडी नाउ. फार्मा मेजर के बेसिस पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. आपने क्वेश्चन देखा, देखो यही आपका क्वेश्चन था. इसी के बेसिस पे आपको क्या निकालना है बेटा? नेट सिलेक्टिविटी आपको निकालना है. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट नेट सिलेक्टिविटी एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन, जो कि हमने स्टडी किया, हमने क्वेश्चन देख लिया और पीछे हमने पूरा इसका थियरी भी स्टडी कर लिया है. चलो वही फॉलो करके हम लोग नेट सिलेक्टिविटी निकालते हैं. तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा. देखो बेटा, नेट सिलेक्टिविटी निकालना तो सिंपल है, एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. बट यार रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो दिया ही नहीं है ना, तो पहले तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? अभी आपको देखो, ये आपको क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपको बोल क्या रहा है बेटा? बोल रहा है नेट सिलेक्टिविटी निकालना है. ठीक है, नेट सिलेक्टिविटी निकालोगे आप लोग. अब नेट सिलेक्टिविटी कैसे निकलता है? एक्चुअल माइनस रिक्वायर्ड. ठीक है, तो एक्चुअल तो ठीक है अपने पास है, गिवन है, बट रिक्वायर्ड किधर है? नहीं है ना, तो रिक्वायर्ड निकालो. इसीलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रिक्वायर्ड रिटर्न. सो आ जाओ. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैंने बताया थियरी में. अभी क्या फॉर्मूला है? रिस्क फ्री रेट प्लस एन इंटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. क्या बेटा? मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है. ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं फिर? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में फंड एक्स का. ठीक है, फंड एक्स का क्या? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. चलो फॉर्मूला यूज कर लो. रिस्क फ्री रेट कितना है बेटा? आपने को क्वेश्चन में कितना दिया था? 8 प्लस, बराबर है, रिस्क फ्री रेट 8 है, क्वेश्चन में दिया आपको. ये देखो ना, रिस्क फ्री रेट, यू कैन सी हियर रिस्क फ्री रेट दिख रहा है. 8 रिस्क फ्री रेट है. उसके बाद एन कैसे निकालते हैं हम लोग? एन पता है ना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड. तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? 10 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट. मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन किधर है? मार्केट, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड हो गया, ये हो गया. ठीक है, और मार्केट का ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट है 9%. ठीक है, चलो, और मार्केट रिटर्न अपने पास कितना है? 17%. तो सब डेटा दिया है, बस फॉर्मूले के हिसाब से यूज करो और कुछ नहीं. तो आ जाओ, एन मतलब क्या हो गया? अभी ये जो एन है उसका मतलब क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड विच इज 10% है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट विच इज 9%. ठीक है, इनटू व्हाट? मार्केट रिटर्न अपने को 17% दिया है, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% है. चलो हो गया अपना ये.
8 प्लस आ जाओ 10/9 कैलसी लो, कैलकुलेटर लो, 10/9 करो, कितना आ रहा है 1.11, ठीक है 1.11 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 8 कितना हो गया 9, सो 8 प्लस 1.11 इंटू 9 कितना हो गया 9.99। चलो तो कितना आ गया फंड एक्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकल, कितना आ रहा है 17.99, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है राउंड ऑफ कर देते हैं, दैट इज 18%। चलो राउंडेड ऑफ फिगर ले लिया, दैट इज 18%। ये फंड एक्स का हो गया, इसका फंड एक्स। अभी फंड वाई का निकालते हैं, चलो फंड वाई, फंड वाई का क्या बेटा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला एज यू ऑल नो विच वी हैव रिटन अर्लियर ऑल्सो, ठीक है सो वही सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, सिर्फ याद रखना फंड वाई का अभी अपने को डेटा लेना है। तो चलो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट तो सबका कॉमन ही रहेगा 8 प्लस आ जाओ n, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड, फंड कौन सा है वाई, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया था अपने को क्वेश्चन में 6%, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड वाई दैट इज 6% दिया है, डिवाइड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन अपना 9% है, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिटर्न है 17 माइनस रिस्क फ्री रेट है 8, चलो आ जाओ 8 प्लस 6/9, 6/9 कितना होता है 0.66666 मतलब 0.67, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 8 दैट इज 9, तो आ जाओ 8 प्लस 0.67 इंटू 9 कितना आ जाएगा 6.03, ओके तो 8 प्लस 6 होता है 14.03, मतलब 0.03 भी है ना 14.03, इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 14%, this will be rounded off then it will get what 14%, yes आ गया। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने को x का भी मिल गया 18% और y का भी मिल गया 14%, ठीक है गॉट इट, दोनों मिल गया अपने को, गॉट इट, चलो चलो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट सिलेक्टिविटी, चलो अभी नेट सिलेक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है नेट सिलेक्टिविटी, चलो नेट सिलेक्टिविटी पहले किसका निकालते हैं हम लोग, नेट सिलेक्टिविटी ऑफ फंड एक्स, ठीक है ऑफ व्हाट बेटा फंड एक्स, फॉर्मूला पता ही है क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल मीन रिटर्न, क्या एक्चुअल मीन रिटर्न बाय व्हाट बेटा फंड एक्स माइनस माइनस व्हाट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय फंड एक्स, ये आपका फॉर्मूला है, चलो यूज करो। एक्चुअल मीन रिटर्न कितना था 21 एक्स का, माइनस रिक्वायर्ड कितना आया था 18 आया था, जो पीछे कैलकुलेट किया आपने देखो रिक्वायर्ड 18 राउंडेड ऑफ, तो कितना हो गया 3%, ये नेट सिलेक्टिविटी ऑफ फंड एक्स आ गया, ठीक है नेट सिलेक्टिविटी ऑफ फंड एक्स। चलो अभी निकालते हैं नेट सिलेक्टिविटी ऑफ फंड वाई, क्या नेट सिलेक्टिविटी ऑफ फंड वाई, फॉर्मूला सेम ही है बेटा, सेम फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, तो फिर से यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करो कैलकुलेशन के लिए। एक्चुअल मीन रिटर्न कितना था 15 और इसका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना आया है 14 आया है, ये देखो ना 14 वाई का, तो 14 माइनस 14 तो कितना आया इसका 1%, दैट्स इट, ठीक है अब इसका नेट सिलेक्टिविटी ऑफ फंड वाई,
बराबर है। नेट सिलेक्टिविटी ऑफ फंड वाई कितना आ गया 1%। व्हाट इट, तो बस अभी दिखा देने का कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या दिखाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एज पर फार्मा मेजर फंड एक्स इज मोर अट्रैक्टिव। फंड एक्स क्या है, मोर अट्रैक्टिव है, क्योंकि फंड एक्स पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है अपने को। तो दिखा देने का एज पर फार्मा मेजर व्हाट बेटा, कंक्लूजन करके भी दिखा सकता हूं, फंड एक्स इज मोर अट्रैक्टिव। बराबर, फंड फंड क्या बोल रहा है, फंड एक्स इज मोर अट्रैक्टिव देन फंड वाई, दैट्स इट। मालूम पड़ा। और याद रखना फंड एक्स ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू फंड वाई से, बराबर, क्योंकि फंड एक्स का नेट सिलेक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, दैट्स इट। और हमेशा याद रखना पॉजिटिव वैल्यू अगर है, दोनों में वैल्यू तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट द फंड अर्न रिटर्न्स हायर देन द एक्सपेक्टेड, एंड नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, द फंड अर्न रिटर्न लेस देन द एक्सपेक्टेड। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन अच्छा रिटर्न कौन सा है, विच वन इज बेटर, एक्स इज बेटर, क्योंकि उसका क्या है, रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर फार्मा मेजर, ये होता है अपना इधर फार्मा मेजर। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करना, क्लियर, यस अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो अच्छे से रिवाइज करना, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, टेक केयर।